8.9 समथिंग ग्रेड था बीएससी में, एंड एमबीए में हम लोगों का 4 सीजीपीए का होता है स्केल जो होता है, उसमें मेरा 2.83 था। तो Okay, great. दोज वर माय ग्रेड्स इन बोथ बीएससी एंड एमबीए। देती हूँ, आई हैड दिस इंटरव्यू, आई डिड माय समर इंटर्नशिप विद आईटीसी। उन्होंने Okay. मुझसे, और मैंने नीचे लिखा था कि मुझे इंसेक्ट्स कलेक्ट करना बहुत पसंद नहीं है मुझे, Okay. ठीक है, लेकिन सिंस हमारा कोर्स था एंटोमोलॉजी Yeah, एंड correct. इट लुक्स वेरी डिफरेंट इन अ सीवी, ठीक है, Correct, तो correct. आई हैड पुट इट इन माय हॉबी, एंड आई किड यू नॉट दैट इंटरव्यूअर आस्क्ड मी about that particular hobby and questions regarding that for 10 straight minutes। 10 मिनट तक मेरा इंटरव्यू उसके Oh. या 6 घंटे जो अकेडमिकली एक्टिव रहता है, उससे बेटर रिजल्ट पता है किसका होता है? जो 4 घंटे फिजिकली एक्टिव है, सॉरी 2 घंटे फिजिकली एक्टिव है और 4 घंटे अकेडमिकली एक्टिव है। हैंड महीने का, इन हैंड बोले तो आपके अकाउंट में जितना पैसा आ रहा है, दैट इज गोना बी अराउंड 1.5 to 1.6 lakhs, ठीक है। Welcome, Niharika, and Hi, welcome, thank you. guys. Welcome, guys, to Hi this. guys, everybody who's watching. Hi. Uh, Welcome to our YouTube channel, and this is our second session about the series which is going on. If not AFO, then what? So, Miss Niharika Sharma is our new guest here. So, she is currently as a retail trading manager in Asian Paints. And first, we will start with a brief introduction with Niharika. Actually, she is my fellow batchmate in the same college. We have done the college from the same, like we have done the degree from the same college, US Bangalore. So continue to share, Niharika, and please start with your brief introduction. Yeah, sure. Hi, I am Niharika. I have been born and brought up in Rajasthan. And then for my bachelor's, I moved to Bangalore for 4 years, where I completed my bachelor's of science in agriculture from University of Agricultural Sciences, Bangalore. As Sarup mentioned, we were batchmates. Post that, I completed my MBA from Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi. So it's a trade college, and when I say trade, I don't mean trading that we do in stock market and all. So it's trading of commodities. So what we study in marketing classes and agriculture courses, that commodities are exchanged between countries. So that is the kind of trade college I was in. But when I say trade, I also mean there are different subjects and different I'll say different other parts also. Like I am in sales and marketing currently, so that's what I'm currently doing. In second year, I got my what do you say? My job role, which was from Asian Paints, and I got into Asian Paints as trainee manager and in retail. So currently, I am based out of Bhopal as retail trainee manager. So yeah, that's something about me. Okay. तो निहारिका, मैं ऐसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मोस्टली एग्रीकल्चर के बच्चे लाइक स्टूडेंट्स है, सो दे वांट टू नो लाइक हाउ योर जर्नी स्टार्टेड लाइक एज एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट, लाइक what were your initial thoughts, and what were your future aspects like when you have entered the college and when you have been through the 4 years degree. सो 4 साल की जो जर्नी रहती है, आई एम प्रिटी श्योर सम ऑफ यू आर गोइंग थ्रू इट, सम ऑफ यू हैव पास्ड इट ऑलरेडी। तो जो जिन लोगों ने पास कर लिया है वो मेरे से बहुत रिलेट कर पाएंगे। बहुत एडवेंचरस होती है यार, मतलब इफ यू आर इन सम दैट काइंड ऑफ कॉलेज, जो जहां से मैं करके आई हूँ, वो तो रगड़ते हैं अच्छे से। सो वो आपको चैन से रहने नहीं देंगे। प्रॉपर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, कैसे खेती होती है, कैसे क्या होता है। एंड व्हेन आई से खेती होती है, आई टॉक अबाउट द साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इट ऑल्सो। सो ऐसा नहीं है कि आपको किसान बनाने की तैयारी कर रहे हैं, दे ऑल्सो टॉक अबाउट द साइंटिफिक एस्पेक्ट्स, कि क्या उसमें टेक्निक लगती है, क्या केमिकल्स लगते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, सो एवरीथिंग लाइक दैट। If I talk about my journey, it was good. I made good friends. The subjects were very interesting. ठीक है, अगर आप इस जर्नी से अभी गुजर रहे हो, तो आई से कि लोग बोलते हैं कि ग्रेड्स वगैरह को फर्क नहीं पड़ता है, बट ऐसा मत करना प्लीज। ग्रेड्स वगैरह थोड़ा सा फर्क पड़ता है आगे। और अगर आप इन सब चीजों से निकल गए हो, तो आई थिंक हम इंटरव्यू में आगे भी थोड़ी बात करेंगे उस बारे में, कि अगर आपके कम मार्क्स रह जाते हैं किसी रीजन से, तो आप क्या कर सकते हो, हाउ कैन यू स्टिल गेट इनटू अ गुड कॉलेज आफ्टर योर बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री और बीएससी हॉर्टिकल्चर डिग्री, और इन दैट सिमिलर लाइंस। तो जर्नी मेरी अच्छी थी यार, मतलब हमने बात की तो what were your grades and all about in like in your college degree CGPA, if you want to tell about. 8.9 समथिंग ग्रेड था बीएससी में, एंड एमबीए में हम लोगों का 4 सीजीपीए का होता है स्केल जो होता है, तो उसमें मेरा 2.83 था। तो Okay, दोज great. वर माय ग्रेड्स इन बोथ बीएससी एंड एमबीए।
आ रहे हैं ना, उस टाइम पे मैं स्ट्रिक्ट हो जाती थी. आई स्टिल रिमेम्बर कि मुझसे ना रात में 2-2:30 बजे तक 3 बजे तक मुझसे पढ़ाई नहीं होती थी. हाँ, आई कैन गेट अप एट 3 AM. मैं रात को 7 बजे Okay. 8 बजे सो के मैं 3 बजे उठ जाऊंगी. एंड देन नॉन Okay. इंटरप्टेड मैं 6 या 7 बजे तक पढ़ती थी एग्जाम वाले दिन. नौ You are बजे the से early शायद bird. हम. आई एम. एंड आई Okay. रिमेम्बर शायद अपना मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम्स होती थी 10 Yeah, बजे या 9 बजे mostly. समथिंग. हाँ, Mostly. तो Yeah. मैं 7 बजे तक पढ़ती थी. 3 से लेके 7 बजे तक 4 घंटे पढ़ा. उसमें मैंने एक बार स्केड्यूल कंप्लीट कर लिया जितना भी मेरा ये कोर्स था एग्जाम में आने वाला. फिर उसके बाद मैंने 1 घंटे में अपने लिए टाइम निकालती थी जिसमें 10-15 मिनट की पावर नैप हो जाती थी. नहाना धोना सारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब उसी में हो जाता था. एंड देन आई यूज्ड टू लाइक रिवाइज ऑल दोस थिंग्स. तो अगर आपने Okay. वो 3-4 घंटे अनइंटरप्टेड, मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है यार. सम पीपल, आई रिमेम्बर माई फ्रेंड्स, वो लोग रात को पढ़ते थे. सो दे यूज्ड टू स्टडी Okay. लेट. जब Yeah. मैं सोने जा रही होती थी तब उनका स्टार्ट होता था, और जब उनका सोने वाले का टाइम होता था 3 बजे, तब मैं उठती थी. बट Okay. डोंट बी डिसऑनेस्ट इन दैट. अगर आपने डिसाइड Okay. कर लिया है कि आप उठोगे 3 बजे सुबह, तो यू वेक अप एट दैट टाइम. अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मैं सुबह मैं नहीं उठ सकती हूँ या मैं नहीं उठ सकता हूँ, then you take some other time. But वो ऐसा मिराकल तो होने नहीं वाला है unless you are Einstein or somebody or with a greater IQ. मेरा तो नहीं था इतना. मेहनत लगती है यार, करना पड़ता है, थोड़ा टाइम की बात होती है. मुझे भी पता है यार, पूरे सेमेस्टर्स कोई नहीं पढ़ता है. nobody studies. मैं भी नहीं करती थी अगेन. आई नेवर यूज्ड टू डू दैट. बट हाँ, एग्जाम आ रहे हैं, थोड़ा सा स्केड्यूल बना लो, हो जाता है. बस एज अ ट्रेडिशनल एज अ लाइक स्टूडेंट की थॉट यही रहती है कि यार बेसिकली कुछ नहीं यार, बस अच्छे ग्रेड्स आ जाए, उसके बाद भी लाइक यू आर एंगेज्ड इन ऑल द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आल्सो. सो दैट हेल्प्ड यू अ लॉट इन लाइक ग्रोइंग अ गुड पर्सनालिटी एंड लाइक अचीविंग द सक्सेस व्हिच यू आर लाइक हाँ हैविंग इट नाउ. यार, सक्सेस तो अभी मतलब करियर स्टार्ट ही हुआ है. लाइक एज सक्सेस तो अ मैं नहीं स्टार्ट बोलूंगी. इनिशिएट हाँ. या बट अगेन मतलब आई यूज टू पार्टिसिपेट इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग पॉसिबल. मतलब अगर कुछ भी हो रहा है मुझे जाना है. वो सेलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे अलग बात है, मेरे को जाना है. सो व्हेन आई वाज इन GKVK विच वाज आवर कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, वहां पे देयर वर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर स्पोर्ट्स. लेकिन उस टाइम मैं स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं थी. मतलब ऑल्दो आई हैव बीन एक्टिव इन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग माई स्कूल, लेकिन यूजी में मैं एक्टिव नहीं थी. व्हेन आई केम टू PG MBA करने के लिए, देन आई रियलाइज कि यार मतलब स्पोर्ट्स भी तो खेलती थी ना मैं, क्या हो गया. तो मेरे MBA में आके मैंने आई थिंक 4 नए स्पोर्ट्स सीखे, विच आई वन ऑफ दैट ग्रेट. आई नेवर न्यू एग्जिस्टेड. मुझे पता ही नहीं था कि एग्जिस्ट भी करता है. तो मैंने बहुत सारे नए स्पोर्ट्स सीखे एंड आई became engaged in all those sports also. तो when I say कि मतलब when you are asking ना कि extra curricular activities से personality develop होती है, बिल्कुल होती है. अगर इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है. इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज यार मतलब एटलीस्ट 1 या 2 नई चीजें प्लीज ट्राई करो. मतलब डू इट. अगर बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, बहुत ही मतलब फिजिकली चैलेंजिंग हो रही है, या इट्स लाइक टेकिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम, डोंट डू इट. थोड़ा थोड़ा मतलब डू समथिंग. क्योंकि आई विल कम फ्रॉम अ वेरी वो वाला स्टेट कि यार तुमको ना ये हेल्प करेगा. अगर तुमको नहीं भी इंटरेस्ट है ना, तुम्हारा CV जो बनेगा ना जब तुम कंपनी में CV देने जाओगे, वहां पे हॉबीज एंड इंटरेस्ट का एक कॉलम होता है. एटलीस्ट यू विल बी करेक्ट. एबल टू पुट इट देयर. एंड इफ यू गेट वेरी गुड एट इट एंड इफ यू गेट सम मेडल और समथिंग, तो वो तो तुम्हारा सीधा सीधा CV पॉइंटर बनता है. ठीक करेक्ट है, है. वो हो सकता है. एंड देन व्हेन यू आर गिविंग इंटरव्यू फॉर अ कॉलेज और फॉर अ कंपनी, मतलब एंट्रेंस एग्जाम के बाद इंटरव्यू होता है. ठीक है, कंपनीज जब कैंपस में आती है उसमें इंटरव्यूज होता है. सो दोज हॉबीज आर समथिंग विच यू कैन लाइक पिन पॉइंट इन दैट इंटरव्यू एंड यू कैन सर्कुलेट दैट इंटरव्यू अराउंड दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स. तो तुम ना उस इंटरव्यूअर को उलझा लोगे उसी में, जो अभी मैं स्वरूप के साथ कर रही हूँ. ठीक है. तो तुम लोग वो कर पाओगे उस टाइम पे कि ठीक है मैं थ्रो बॉल खेलती हूँ, तो वो तुमसे 4 चीजें पूछ लेगा. फॉर मैं एग्जाम्पल देती हूँ. आई हैड दिस इंटरव्यू, आई डिड माई समर इंटर्नशिप विद ITC. उन्होंने ओके. मुझसे, और मैंने नीचे लिखा था कि मुझे इंसेक्ट्स कलेक्ट करना बहुत पसंद है. पसंद नहीं है मुझे, ओके. ठीक है, लेकिन सिंस हमारा कोर्स था एंटोमोलॉजी कोर्स या एंड करेक्ट. इट लुक्स वेरी डिफरेंट इन अ CV. ठीक है, करेक्ट. तो आई करेक्ट. हैड पुट इट इन माई हॉबी एंड आई किड यू नॉट दैट इंटरव्यूअर आस्क्ड मी about that particular hobby and questions regarding that for 10 straight minutes. 10 मिनट तक मेरा इंटरव्यू उसके Oh, अराउंड ही चला है. And then it depends how you talk, how you communicate, how you like keep that particular person engaged. तो उस चीजों engaged में in the same thing.
या एग्जैक्टली तो अगर कोई हम्म, हॉबीज इंटरेस्ट वगैरह है रख लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो डू इट यार, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज तो बहुत जरूरी है, इट लाइक फ्रेशंस अप योर माइंड। मैं फोर्थ ईयर जब मेरा था, आई यूज टू वेक अप एट 5:30। मैं अर्ली बर्ड हूँ मुझे पता है, लेकिन ओके। उस टाइम पे ना एक वो रहता था कि यार कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। कहीं पे हम्म आई हैव रेड इट समवेयर कि जो 6 घंटे पढ़ाई करता है ना, या 6 घंटे जो हम्म अकेडमिकली एक्टिव रहता है, उससे हम्म बेटर रिजल्ट पता है किसका होता है? जो 4 घंटे फिजिकली एक्टिव है, सॉरी 2 घंटे फिजिकली एक्टिव है, फिजिकल और एक्टिव है और 4 घंटे अकेडमिकली एक्टिव है, उससे बेटर रिजल्ट होता है। बिकॉज वी ऑल नो, मतलब वो फोर्थ क्लास वाली या वो हिंदी वाली बुक्स तो सबको याद ही होंगी, जिसमें लिखा रहता है वो फिजिकल एक्टिविटी और ये सब। या इट लाइक रिलीज गुड हार्मोन्स एंड और स्टडी हाँ। करने में मदद मिलता है, लाइक ऑल दोस गुड थिंग्स उसके साथ साथ ही आती है। एंड एक्चुअली आई वाज आल्सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग आई स्टार्टेड लाइक डूइंग एक्सरसाइज नाउ, लाइक वो काफी हेल्प करता है आपको पोटेंशियल आपका लाइक ग्रो करने में। और and so basically starting with that MBA thing particularly, so how it started, like what's your thought, because हर एक स्टूडेंट का यही रहता है कि मोस्टली वी कैन गो विद ओके बैचलर्स, उसके बाद हम मास्टर्स करेंगे, उसके बाद हाँ थोड़ा बहुत हाँ। करियर का सोचेंगे एंड समथिंग लाइक दैट। सो बट हाउ यू हैव लाइक चूज दिस डिफरेंट, लाइक नाउ डेज पीपल आर चूजिंग इट लाइक काफी लोग इसको चूज कर रहे हैं, बट by that time we hardly, I also didn't thought about MBA and all, because all of we don't have much guidance. So now also here some students are there like in north and all, they didn't knew much. And so how you choose this field and like how you like started this journey? सो व्हेन यू आर डिफाइनिंग दैट पर्सन ना, कि यार हर कोई यही सोचता है बीएससी कर लेंगे फिर एमएससी कर लेंगे, सो आई फील लाइक यू आर डिफाइनिंग मी। यही मेरा एग्जैक्ट सेम थॉट प्रोसेस था। ऑल्दो मेरा ये था लाइक आई हैड दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच वाज फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें मुझे Correct. मास्टर्स करनी थी, एंड आई हैड फिक्स्ड अ कॉलेज ऑल्सो कि मुझे करनी है तो मुझे यहीं से करनी है। सो इट वॉज आइदर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इन यूएसए और इट वॉज मैकगिल Okay. यूनिवर्सिटी इन कैनेडा। ठीक है, मैंने Okay. डिसाइड कर रखा था कि वर्ल्ड की बेस्ट 2 यूनिवर्सिटीज है ये, टॉप 1 एंड टॉप 2 फूड साइंस के लिए, और मुझे यहीं से करना है। सो जब रावे आता है हमारा फोर्थ ईयर में, मैंने उस टाइम पे जीआरई एंड आइल्स एंड टॉफल वगैरह का स्टार्टिंग कर दिया था, मतलब प्रिपेयर वगैरह कर लिया था। तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही थी, एंड देन आई गेव दोज एग्जाम्स ऑल्सो। आई स्कोर्ड गुड इन दैट, मतलब 120 का होता है टॉफल। टॉफल इज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी Yeah, एग्जाम। yeah, ठीक है, कि आपको इंग्लिश कितना आता है, वो उन लोगों की वो yeah. रहती है, उनको चाहिए होता है। Mm-hmm. वो बिलीव नहीं कर सकते ना कि हम लोग इंग्लिश बोल सके। Yeah, yeah, yeah. तो तो कुछ 106 समथिंग नंबर थे मेरे, 120 का रहता है वो। उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट रहते हैं, वो स्पीकिंग, Mm-hmm. लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, वो सारे चीजें मिला के 120 का कुछ का पेपर रहता है वो। सो मैंने प्रिपेयर Commendable कर लिया job. था। हाँ। It was a commendable job. थैंक यू थैंक यू। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट। आई डेंट नो वॉट इज एमबीए, आई डेंट नो वॉट इज आईआईएफटी। आई गॉट टू नो इट फ्रॉम माई सिस्टर। उसने बोला Okay. मुझे कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस, व्हाई डोंट यू गिव कैट एंड आईएफटी आल्सो। उस टाइम पे आईएफटी Okay. का अलग से एग्जाम होता था, नाउ इट्स Correct. कंबाइंड इन कैट। तो उसने मुझे बोला कि यार अगर तू प्रिपेयर कर ही रही है, ट्राई कर ही रही है, व्हाई नॉट कीप अ बैकअप। ऐसा तो नहीं है कि हो ही जाएगा तेरा, जो कि नहीं हुआ। आई अप्लाइड टू मैकगिल, कॉर्नेल का टाइम चला गया था तो मैं अप्लाई नहीं कर पाई उसमें। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है, तो मैं तो पूरा हिसाब किताब रख रही थी कि अच्छा इसमें इतना पैसा लग गया, इसमें इतना पैसा लग गया। मैंने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया एंड इट कॉस्टेड मी 30,000 रुपीज टू अप्लाई फॉर जस्ट Okay. वन कॉलेज। ठीक है, एंड दे रिजेक्टेड मी। ठीक है, तो Okay. उससे पहले मैंने मेरा टॉफल का एग्जाम हुआ था, उससे एक हफ्ते बाद शायद कैट का एग्जाम था, उसके एक हफ्ते बाद, कैट के एक हफ्ते बाद आईएफटी का एग्जाम था। तो आई गेव Okay. कैट ऑल्सो, आई गेव आईएफटी ऑल्सो। कैट का मेरा स्कोर इतना खास नहीं था, इट वॉज 86 परसेंटाइल। तो कुछ मिलता नहीं है, Okay. मतलब जो लोग कैट रेगुलरली देते हैं उनको पता होगा कि 86 Mm-hmm. परसेंटाइल पे जनरल कैटेगरी में कुछ भी नहीं मिलता है। तो मुझे कुछ मिला नहीं था, एंड आईएफटी में मेरा परसेंटाइल था 96। अब जब 96 परसेंटाइल लगता है सुनने में, कह रहे वाह यार 96 मिल गया। 96 परसेंटाइल इज नथिंग। उसमें थोड़ा सा वो गर्ल कैंडिडेट होने का फायदा होता है, थोड़ा सा वो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का फायदा होता है, थोड़ा सा उसमें आपके 10th एंड 12th के जो ग्रेड्स होते हैं ना, वो भी एड ऑन करके थोड़ा हेल्प कर देता है। उसके बाद जाके मेरे को समझ में आया कि चलो ठीक है यार, जब हो गया है तो वाई नॉट इट।
So that is how my shift from BSc Agriculture to IFT MBA that happened. तो I didn't know it. मेरे पास कोई ऐसा गाइडेंस नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था कि क्या होता है. अभी तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. मतलब व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर MBA के, तब मुझसे मेरे जूनियर्स पूछते थे कि दीदी आप यहाँ पे हो, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है. आई रिमेम्बर देयर वर ओनली 2 or 3 कैंडिडेट्स डूइंग MBA व्हेन आई वाज इन 4th ईयर GK. Yeah, hardly it was a एक rare या thing at that हाँ, time. एक या दो लोग थे जो MBA के लिए सोच भी रहे थे. सोच भी रहे थे. तो उस टाइम पे इतना नहीं था. अभी तो आई थिंक हर तीसरा बंदा शायद GK VK में सोचता होगा कि चलो MBA कर लेते हैं. ये भी थोड़ा रैट रेस बनता जा रहा है. बट अगर आप मीनिंगफुल जगह से कर रहे हो एंड इफ यू आर रियली गुड एट इट, यू कैन डू वंडर्स. मतलब ये दैट्स व्हाट माय थिंकिंग. But as you have mentioned that you have applied for that Cornell and all, तुमने ये सब colleges, how did you find that, like anybody who guided you, but इतना particular कैसे थे तुम कि बस हाँ मेरे को उन्हीं 2 colleges में जाना है, but how you approached like all those exams, what were, मतलब TOEFL दिया तुमने, GRE दिया, how you prepared for that, and वो mindset कैसे है कि मेरे को ये college कहाँ से मिलेगा, because student don't know, बहुत सारी abroad universities है, जर्मनी है, यूरोप है, like whole Europe, USA, Canada. But how you scanned the whole, what is the scanning process like for you? यार देखो ऐसा था कि आई हैड दिस थिंकिंग हमेशा से कि मुझे ना सेटल नहीं होना है बाहर, बट मुझे थोड़ा सा मतलब बाहर का फ्लेवर देखना है कि कैसा होता है. एक्सपोजर चाहिए मुझे. तो मेरे को ये था कि यार बैचलर्स तो इंडिया में हो गई, मास्टर्स कर लेते हैं बाहर से, ठीक है. और वो उसके लिए फिर बहुत सारी चीजें होती है. मतलब आई विल ऑल्सो टेल यू द रीजन कि मेजोरिटी क्यों मेरा रिजेक्ट हुआ था. बिकॉज आई आस्क्ड देम फॉर स्कॉलरशिप. अगेन मिडिल क्लास फैमिली भाई, मैं खुद से फंडिंग नहीं कर सकती थी उसकी, ठीक है. तो मैंने उनसे स्कॉलरशिप वगैरह मांगी थी. सो दैट इज आई थिंक वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि मेरा कैंडिडेचर रिजेक्ट हुआ था. तो व्हेन यू से कि हाउ डिड आई गेट टू नो, आप जब फर्स्ट ईयर BSc एग्रीकल्चर में आते हो ना, सो दो सब्जेक्ट्स विच यू स्टडी फॉर द फर्स्ट टाइम, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव बीन ऑलवेज स्टडिंग. आप फिजिक्स, मैथ्स, बायो पढ़ के आए होंगे. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका 11th-12th में एग्रीकल्चर होता है. आई हैव अ कजिन, शी हैज एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 11th and 12th. शी हैड, आई मीन नाउ शी इज इन कॉलेज. तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं. जब आप फर्स्ट ईयर कॉलेज में आते हो तब आपको समझ नहीं आता है कि अरे यार ये इतने सारे सब्जेक्ट्स, मतलब ये तो बहुत ही अलग है. यू रिमेम्बर अपने 12-13 सब्जेक्ट्स होते थे हर सेमेस्टर. बहुत सारे, लाइक आई व्हेन आई जॉइंड द कॉलेज मैंने कहा लाइक ये तो स्कूल से ज्यादा सब्जेक्ट्स थे इसमें तो. लाइक द शेड्यूल वाज मोर हेक्टिक देन स्कूल. एग्जैक्टली. तो जब आप फर्स्ट सेमेस्टर लेते हो, फिर आप सेकंड में आते हो, फिर आप सेकंड ईयर में आते हो, उस टाइम तक आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है, ये पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, ये आपको इंट्रीग करता है, ये आपको फैंसी करता है. इफ दैट सब्जेक्ट डज नॉट फैंसी यू, डोंट टेक इट, बिकॉज यू विल नेवर स्टडी इट. आप उसको दिल से नहीं पसंद करेंगे. आज मैंने ट्रेड पढ़ लिया है, आज मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग पढ़ लिया है, ऑल्दो आई एम इंटरेस्टेड इन सेल्स एंड मार्केटिंग नाउ, बट वो होता है ना जो पहला प्यार होता है, आई थिंक दैट फॉर मी विल बी फूड साइंस ऑलवेज. फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो मेरे लिए वो चीज रहेगा. तो मुझे सेकेंड ईयर में आते आते समझ में आ गया था कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. मुझे अगर रिसर्च भी करनी है, क्योंकि MSc के बाद इतने ऑप्शंस होते नहीं है, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह होती हैं, दैट इज फाइन. मी पर्सनली डिड नॉट वांट टू गो फॉर इट एट दैट टाइम. मेरा ये था कि ठीक है, अगर मुझे रिसर्च ही करनी है, आगे जाके मुझे PhD, पोस्ट डॉक और ये सब भी करना है मुझे, तो व्हाई नॉट डू इट विद दैट सब्जेक्ट विच आई लव. ठीक है, एग्रोनॉमी और पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी में मेरे को इंटरेस्ट नहीं था. आई एम वेरी सॉरी जिनको बहुत इंटरेस्ट है. आई एम सॉरी फॉर माई एम्प्लॉयर्स ऑल्सो. उन्होंने बहुत ऐसे समझ लिया था यार कि इसको तो बहुत इंटरेस्ट है एंटोमोलॉजी में. है यार, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट इतना नहीं है कि उसको मैं हॉबी बना लूंगी. ठीक है, थोड़े ट्वीक्स करने पड़ते हैं. टेक इट इन अ लाइटर नोट प्लीज. जो भी ऐसे नोट्स ले रहा है ना, प्लीज टेक इट इन अ लाइटर नोट. ऐसे CV पे झूठ नहीं बोलते, पकड़ा जाते हैं. ठीक है, तो ये था. सो सेकेंड ईयर तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको ये पढ़ना है. अगर आपको समझ में आ गया है, आइदर यू टॉक टू अ सीनियर और यू गो ऑनलाइन. एंड व्हेन आई से गो ऑनलाइन, सर यूट्यूब पे सब मिलता है. यू वोंट बिलीव, मैंने कैट के लिए और IFT के लिए जब मैथ्स के सम्स वगैरह सॉल्व करने होते थे ना, मैं यूट्यूब पे देखती थी वो.
मैंने कोई ओके। कोचिंग वगैरह कुछ ज्वाइन नहीं किया। आई यूज टू सी कि वो सम कैसे सॉल्व हो रहा है, मैं करती भी नहीं थी, आई वॉज दैट लेजी, मैं सॉल्व ही नहीं करती थी। मैं बस यूट्यूब पे देख लेती थी कि अच्छा ये ऐसे सॉल्व हो रहा है। एंड उस टाइम पे जब आईएफपी का एग्जाम होता था ना, तो उसमें जीके आती थी, जीके के कुछ 20 क्वेश्चंस आते थे। आई रिमेम्बर लर्निंग देम फ्रॉम यूट्यूब ऑल्सो। मतलब आज के टाइम पे यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, प्लीज उसको यूज करो। मैं बहुत मिस यूज करती हूँ यूट्यूब का, वो व्लॉग्स देख लिया या वो ये कर लिया, ठीक है, दैट वो अपनी जगह। मैं भी बहुत यार घंटों घंटों स्क्रॉलिंग चलती है मेरी यूट्यूब पे। लेकिन अगर आपको कुछ भी चीज पढ़नी है, कोई भी नई चीज पढ़नी है ना, एवरीथिंग, मतलब मल्टीट्यूड्स में जो है रिसोर्सेज अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप जाइए, आप देखिए वहां पे कि क्या इसके आगे मैं क्या कर सकती हूँ। व्हेन आई वाज देयर, मैंने समझ में आया सेकंड ईयर तक मेरे को कि मेरे को फूड साइंस करना है। फिर मैंने देखा कि फूड साइंस में बैचलर्स के बाद कौन सी डिग्री मिलती है, एमएससी मिलती है, मतलब मास्टर्स वगैरह होती है। फिर मैंने हाँ। देखा कि बेस्ट कॉलेज कौन सी है, वो मुझे ओके। गूगल से मिल ही गया कि ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है। फिर मैंने उसका जो पर्टिकुलर कोर्स था, मैंने उसके वेबसाइट पे जाके देखा कि इनका डिमांड क्या है, इनको क्या चाहिए। तब मुझे पता चला कि इनको जीआरई चाहिए, इनको टॉफल चाहिए। टॉफल या आइल्स में से आप कोई एक मांगती है कोई पर्टिकुलर कॉलेज, तो जो भी ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है दूसरी कॉलेजेस में, आप वो करके देख लो। या तो टॉफल होता है तो आइल्स होता है, तो आपको जो सही लगे वो कर सकते हो। फिर मैंने यूट्यूब पे जाके देखा कि भाई इसका प्रोसीजर वगैरह क्या होता है। इसमें अगर स्टूडेंट्स पढ़ के आए हैं तो आजकल तो हर जगह ब्लॉगिंग चलती है, माई लाइफ एट कॉर्नेल, माई लाइफ एट मैकगिल, वो सब चलता है। तो मैंने वो देखा, डज इट सूट मी, ओके। इफ यस आई विल गो फॉर इट, इफ नो देन ठीक है, आई विल डू समथिंग एल्स। खाली मत बैठो, ओके। मतलब देर इज ऑलवेज समथिंग टू डू, खाली बिल्कुल नहीं बैठना है। एंड यूट्यूब, इफ यूज्ड, यूट्यूब इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेट इन जनरल, ठीक है, इफ यूज्ड इन अ बेटर सेंस, इफ यूज्ड इन अ गुड सेंस, इट कैन हेल्प यू, इट कैन हेल्प यू आउट फॉर एनीथिंग। मैंने मैथ्स के सम्स देखे हैं भाई वहां पे, और क्या ही नहीं मिलेगा वहां पे। करेक्ट है। So which all channels you have followed और GRE की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट हुई? That's also by YouTube or something you have any recommendation? यार जीआरई का जो प्रिपरेशन था उसके लिए चैनल्स वगैरह आई एम नॉट वेरी श्योर, मेरे को याद नहीं है यार, बहुत टाइम हो गया उस चीज को, 6-7 साल हो Okay. गए उसको, तो मुझे याद नहीं है। बट आई रिमेम्बर देर इज अ ईटीएस करके, इनका ईटीएस इज द ऑर्गेनाइजेशन जो जीआरई और टॉफल कराती है, मतलब कंडक्ट कराती है, जैसे अपने यहाँ पे एनटीए होता है ना, तो ईटीएस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बुक्स भी आती हैं, उसका एक वेबसाइट भी है, तो आई थिंक वहां से रिसोर्सेज वगैरह मिल सकते हैं। दैट्स द ओनली थिंग आई रिमेम्बर। आई रिमेम्बर एक हरे रंग की बुक होती थी बहुत मोटी सी, तो उसमें वो सारे क्वांट और क्वालिटेटिव और वो सारी चीजें रहती थी, एंड दैट इज व्हाट आई हैड फॉर जीआरई। एंड टॉफल तो यार मैंने खुद से ही करी थी, अगेन यूट्यूब पे जाके सैम्पल पेपर्स, एंड आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड, उसने मुझे वो भी प्रिपेयर करा था, एंड ही हैड लाइक फ्री रिसोर्सेज, फ्री नहीं, ही पेड फॉर इट, इट वाज फ्री फॉर मी, मैंने उससे ले लिया Okay. था। तो वहां से मैंने किया था, सैम्पल पेपर्स वगैरह सॉल्व किए थे 4-5, दैट्स द ओनली थिंग आई डिड। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया था उसके लिए। कैट के लिए एंड आईएफटी के लिए अगेन मैंने जो क्वांट था और क्वालिटेटिव और इंग्लिश वोकैबुलरी वगैरह था, वो जीआरई से प्रेप हो ही गया था। जो Okay. ये आता था एक्स्ट्रा, और क्वांट मेरा यार, मैं 10th में लास्ट मैथ्स पढ़ी थी मैंने, 11th-12th में मेरे करेक्ट पास है। हम्म। तो 11th-12th में मेरे पास बायो था, मैथ्स मेरा इतना स्ट्रांग नहीं था, सो दैट आई स्टडीड अगेन। तो दिस हाउ आई गेव दोज एग्जाम्स। बायो वाला हमेशा स्केर्ड रहता है मैथ से हमेशा। इसीलिए हाँ फिजिक्स यार, भी अब नॉर्मल थोड़ा लगता सा। है। हाँ तो मतलब सबका यही रहता है। लाइक आई ऑल्सो एग्जैक्टली। लाइक बायो बैकग्राउंड नो, सो कि यार लास्ट टाइम पे पढ़ा था अब क्या होगा, सो वी हैव टू लाइक फोकस मोर ऑन मैथ्स एंड लाइक पुट अप हार्ड वर्क ऑन दैट। तो करेक्ट। बेसिकली तुम्हारा यही था। सो इफ एनीवन वांट्स लाइक प्रोफेसर गाइडेंस थी कुछ आपको? प्रोफेसर गाइडेंस आई वुड से, मैंने 1-2 प्रोफेसर से बात करी थी, बट यहाँ पे ना, मतलब अपने यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है यार। अपने यहाँ पे ना बस सब सोचते हैं कि बीएससी कर लो, एमएससी कर लो, पीएचडी कर लो, लेक्चरर बन जाओ। गलत नहीं है उसमें कुछ भी, लेकिन ना हमारे यहाँ पे वो एक रैट रेस बन चुकी है। बाहर करेक्ट है। मुझे इसीलिए जाना था क्योंकि आई वुड बी स्टडिंग विद पीपल हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट, नॉट बिकॉज दे वांट टू गेट अ जॉब आउट ऑफ इट। ठीक है, करेक्ट है। आज एमबीए के लिए मैं ये चीज बोल सकती हूँ,
and this is the truth also, I'm not gonna lie about it, that I studied there to, I paid the fees to purchase a job. ठीक है, नो डाउट Okay. मैंने इन दैट जर्नी आई हैव लर्न थिंग्स जो मुझे नहीं Mhm. आती थी. आई वॉज नॉट वेरी टेक्निकली साउंड. ठीक है, Okay. क्योंकि बैचलर्स में हमने कहाँ इतना लैपटॉप और ये सब यूज किया है. ठीक Nothing. है, एमबीए में तो बहुत सारी चीजें होती है यार. एक्सेल वेक्सेल पे प्रो एक्सेल वेक्सेल पे प्रो कर देते हैं. एंड देन देर आर लाइक पीपल फ्रॉम मल्टीपल वॉक्स ऑफ लाइफ, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती है, आप बहुत सारी चीजें लर्न करते हो. तो इसलिए भी मैं अपनी गलती से भी दूसरों को समझाना चाहूंगी कि अगर तुमको टेक्निकली चीजें समझने के लिए बैचलर्स में टाइम मिलता है, प्लीज डू इट. मास्टर्स वास्टर्स का वेट मत करो. वो जो एक्सेल कोर्स आपने अपने उसमें रखा होगा ना कार्ट में कि वो 30 डे में एक्सेल सीखें, करेंगे किसी टाइम पे, प्लीज डू इट नाउ. करेक्ट है. एज अ जो प्रोफेशनल अभी मैं भी जैसे कर रहा हूँ तो एक्सेल लाइक इज अ हाँ, मस्ट थिंग टू लर्न. नाउ आई इट आई एम इज इट बीन लाइक इज लर्निंग अ लॉट डे बाय डे. कुछ ना कुछ नया इट इज पता अरे चलता है कि मैंने तो लाइक नौकरी में आने के बाद सीखा है यार. मेरे को तो नहीं आता था, सो मैंने तो दैट्स व्हाट. नौकरी में. एग्जैक्टली. हार्डली फर्स्ट ईयर में हमने फर्स्ट सेम में कंप्यूटर का कोर्स था, उसमें भी लाइक एक बेसिक वो कुछ था, उसी में बस वो हाँ, उतना एक्सेल सीखा वो था, जो उसके एक बाद लाइक घटिया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाते हैं वो लोग, वो था. सो लाइक तो दैट इट वाज. अगर आपको प्रोग्रामिंग वगैरह में है तो करो यार, मतलब सीख लो. मतलब बैचलर्स में नाउ आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट, नाउ व्हेन वी लुक बैक, यू एंड मी बोथ, हम जब पीछे देखते हैं करेक्ट. तो ये नहीं लगता कि यार उस टाइम पे इतना लगता था कि हम कितना बिजी रहते हैं. अगर हम्म. हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता यार कितने फ्री थे हम लोग. फ्री और थे हमने हर लाइक. कुछ भी नई स्किल, मेरा हर न्यू ईयर 4 न्यू ईयर देखे ना हमने वहां पे, 4 या 3 होते हुए. हाँ. हर न्यू ईयर पे मेरा रेजोल्यूशन रहता था कि मैं हर 6 महीने में ना, हर सेमेस्टर में एक नया स्किल सीखूंगी. कभी नहीं हुआ. आई लर्न नथिंग न्यू. मैंने कुछ नया करेक्ट नहीं है. सीखा वहां पे. ठीक है, तो अगर आप उस जर्नी से अभी जा रहे हो, दिस इज टू ऑल ऑफ यू व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, अगर आप उस जर्नी से जा रहे हो ना, इफ देर इज समथिंग न्यू. आज के हमारे टाइम पे चैट जीपीटी भी नहीं होता था. ठीक है, करेक्ट है. वो चैट जीपीटी के भी आजकल ना कोर्सेज मिलते हैं कि बिल्कुल. चैट जीपीटी कैसे यूज करें. आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट यूजफुल, वो प्रॉम्प्ट्स वगैरह बहुत काम आते हैं प्रॉम्प्ट्स. कि आपको आपको यूं समझ लो कि आपको खुली किताब मिल रही है, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको ढूंढना क्या है उसमें, आपको कैसे ढूंढना है. करेक्ट वो है. प्रॉम्प्ट्स वगैरह सिखाते हैं कि प्रॉम्प्ट्स वगैरह कैसे यूज करना होता है. बट वो सब चीजें अगर आप सीखोगे नहीं ना, तो वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है आगे. मतलब द काइंड ऑफ वर्ल्ड वी आर लिविंग इन ना, आप टेक्नोलॉजी के बिना नहीं रह सकते हो. एंड ये मेरी प्रॉब्लम थी बीएससी एग्रीकल्चर जिन्होंने भी एक कोर्सेज फॉर्मुलेट किए ना. आपने हमें खेती करना तो सिखा दिया, आपने हमें टेक्नोलॉजिकल साउंड नहीं बनाया. आपने हम लोगों करेक्ट को है. ना, आई यू रिमेम्बर हमारी जब प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी तो वो भी हम या लोग वो स्टिल. बैल के साथ ही वो खेत ऑल द जोत रहे होते थे, ट्रेडिशनल. वही है ना. ट्रेडिशनल ऐप वो परस्यू कर रहा था. गुदली लेके हम लोग जा रहे होते थे. हाँ. यू कोई रिमेम्बर. लाइक मैकेनिकल वो नहीं था उस कुछ टाइम पे भी सब. मैं उस टाइम पे भी प्रोफेसर से झगड़ा किया करती थी कि सर आप हम्म. पढ़ा तो रहे हो, ठीक है आप पढ़ाओ, लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं भी यही कर रही हूँ और जिसकी 4 एकड़ खेत है, जमीन है, वो भी वही कर वो रहा भी है. अगर वही कर रहा है तो वो तो मेरे से ज्यादा जानता है ना, क्योंकि वो हर साल ये हम्म. चीज करता है. मैं ये चीज आज के बाद तो दोबारा नहीं करूंगी. तो आप मेरे को कुछ ऐसा बताओ ना कि मैं वो जो 4 एकड़ वाला जमीन वाला आदमी है, उसको भी वो टेक्निकली मैं उसको हेल्प कर पाऊँ. राइट, तो वो चीज है. तो अगर आपको टेक्नोलॉजी कोई सिखा नहीं रहा है, यू लर्न इट योरसेल्फ. आप उसको टाइम दीजिए, आप उसको पढ़िए, क्योंकि यू आर योर बिगेस्ट हेल्पर. कोई हेल्प नहीं करने आएगा. और आज के टाइम में जो कंपनीज है ना, वो ढूंढती है कि दूसरे अलग अलग कल्चर से लोग आए हमारे यहाँ पे, हमारी कंपनी का अच्छा कल्चर करे. बट आपको अगर टेक्नोलॉजी नहीं आती है, देन दे विल आस्क यू टू लीव द नेक्स्ट डे दे हायर यू. ठीक है, करेक्ट है. अगर आपको वो चीजें नहीं आएगी तो आप नहीं सरवाइव कर पाएंगे, बिकॉज देर इज समबडी एल्स सिटिंग देयर जो वो चीजें ना बहुत पहले से पढ़ रहा है, पढ़ रहा और है. वो किसी का वेट नहीं करेगा, वो आपको तुरंत रिप्लेस कर देगा. तो आपको वो पेस मैच करनी होती है लाइक जो भी चल रही एग्जैक्टली. है उसको. वरना आप लाइक यू विल बी स्टैंडिंग बिहाइंड. आप फिर क्राउड हो जाओगे उनके लिए. करेक्ट. तो फिर एमबीए, हाउ डिड एमबीए ट्रांसफॉर्म्ड यू आफ्टर लाइक इन पोस्ट ग्रेजुएशन. पोस्ट ग्रेजुएशन यार, फर्स्ट जैसे सेमेस्टर्स होते हैं ना अपने इसमें हम्म. बैचलर्स में,
एमबीए में जनरली ट्राइमेस्टर्स होते हैं, एक्सेप्ट फ्यू कॉलेजेस, एफएमएस जो डीयू के हिसाब से चलता है तो वहां पे सेमेस्टर्स होते हैं, हमारे ट्राइमेस्टर्स होते थे। तो ओके 3-3 महीने 4-4 महीने रफली का एक ट्राइमेस्टर होता है, तो टोटल 6 ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज द हार्डेस्ट। एक तो आप अगर किसी पहली कॉलेज से दूसरी कॉलेज में स्विच कर रहे हैं, आई मीन अगर आप फ्रेशर्स हैं मेरी तरह, बैचलर से मास्टर्स में आ रहे हैं, आपके लिए भी डिफिकल्ट है। ठीक है, ऑल्दो आप पढ़ते हुए ही आए हैं और आपको फिर 2 साल पढ़ना है, आपके लिए भी डिफिकल्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट्स बदल जाते हैं। आपके साथ जो एक सेक्शन में या एक क्लास में बच्चे बैठते हैं, मैं 22 साल की थी जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, मेरे क्लास में 30 साल के लोग भी थे। ठीक है, तो बहुत ओके इन्फीरियोरिटी होती थी कि अरे यार इसको तो मुझसे कितना ज्यादा आता होगा, ये तो 4-5 साल का एक्सपीरियंस लेके आया है। ठीक है, करेक्ट है लेकिन वो जो 30 साल वाला बंदा है ना, उसको पता है क्या लगता होगा, यार मैं 30 साल में भी यही कर रहा हूँ और ये 22 साल की यहाँ पे बैठी हुई है, ये भी यही कर रही ये है। भी वही कर रही है ठीक है, तो वो इट्स डिफिकल्ट फॉर एवरी वन। एंड वेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, बहुत सारी चीजें नई होती है, बहुत सारा वो टेक्नोलॉजी आती है, मतलब समझ ही नहीं आता कि अरे यार क्या हो रहा है। देन प्लेसमेंट का वो बहुत रहता है, समर इंटर्नशिप के लिए प्लेसमेंट साइकिल स्टार्ट हो जाती है, फर्स्ट 3 मंथ्स में ही आपको प्रिपेयर किया जाता है कि कॉर्पोरेट में कैसे बिहेव करना है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच गोज ऑन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में डिसाइड कर लिया था, आई एम गोइंग टू ड्रॉप आउट ऑफ दिस कोर्स। मैंने सोच लिया था कि यार मेरे से नहीं हो टू बी ऑनेस्ट रहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार मैं नहीं कर रही, मुझसे नहीं होगा भाई, ओके मतलब इतना तो एकदम मार ही देंगे ये लोग। फिर मैं डिसाइड कर लिया, घर पे मैंने किसी को बताया नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है, कि मैं ड्रॉप आउट करने वाली हूँ। 1-2 दिन मैं फिर और कॉलेज में गई, फिर पता है मुझे क्या याद आया, रावे होता है ना, ठीक है। द मुझे मिजरेबल अपना 3 months 3 अपने लिए 4 था, इफ यू रिमेम्बर। हाँ अरे भाई साहब रावे होता है ना, तो जब रावे चल रहा था मेरा, तब मैंने एक चीज खुद से बोली थी कि आज अगर मैंने ये चीज निकाल ली ना, ये 4 महीने अगर मैंने निकाल लिए, इससे तो ज्यादा मैं डिफिकल्ट मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है। अगर मैंने कहीं भी ये कर सरवाइव लिया, कर आई लोगे कैन डू एनीथिंग। ठीक है, आई होप यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, एग्जैक्टली टाइम पे जब मैं फर्स्ट ट्राइसेम में थी तो मैंने वही सोचा, मैं कहा यार वो टाइम पे मैं जब निकाल के आ गई थी 4 महीने, तो मैं ये कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। ठीक है, करेक्ट है देन मैंने डिसाइड किया, फिर धीरे धीरे सारी चीजें अच्छी अच्छी होती गई। बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं यार, एमबीए इज नेवर इजी। ठीक है, बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं। अप्स अप्स पे फोकस करो, डाउन्स तो अपने आप निकल जाते हैं। ठीक है। बिकॉज लोगों को क्या लगता है ना इट्स ऑल अबाउट ब्रांड इट्स ऑल अबाउट प्लेसमेंट उनको ये एक्चुअली ट्रू हसल नहीं पता है कि यार एक्चुअल में कितना स्ट्रगल है एमबीए करने में सुनने में सब फैंसी लगता है प्लेसमेंट कूल लगते हैं बट द जर्नी व्हाट दे गो थ्रू वो आप ही बता सकते हैं एक्चुअली में सो तो ये भी जानना जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो ऐसा नहीं कि फैंसी बस प्लेसमेंट्स को देख के या वो सब शानो शौकत को देख के कॉर्पोरेट्स को देख के वो मतलब उसमें चले जाए तो इट वाज अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू हैव शेयर्ड दैट थिंग फिजिकल टॉर्मेंट नहीं होगा यार, मतलब फिजिकल टॉर्मेंट इन द सेंस के, मेंटली हाँ 3-3 बजे तक आप सोओगे, आपको फिर 8 बजे सुबह उठ के आपको क्लासेस के लिए जाना है, फिर आपको सीनियर्स अपना कोई असाइनमेंट, पीडीपी वगैरह होता है, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और करेक्ट वो है सब होता है, तो उन सब चीजों में 2-2 3-3 बजे तक असाइनमेंट चलते रहते हैं, दैट इज नॉर्मल। ठीक है, तो ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं नींदें पूरी नहीं हो रही है, मेरे बैच में बच्चे बीमार होते थे यार, चक्कर वक्कर खा के गिर जाते थे, बहुत सारी चीजें होती थी। मेंटल टॉर्मेंट ज्यादा है। ठीक है, वो मेंटल अग्नि परीक्षा जो होती है ना, वो एमबीए में बहुत ज्यादा होती है। आपको वो इतना, या तो वो आर या पार वाली सिचुएशन होती है। ठीक है, बीच में कोई नहीं रहता, या तो आप आर हो गए या तो आप पार हो गए। बहुत सारे बच्चे बीच में ड्रॉप आउट करके गए थे, और मैं उनका ओके अपना अपना रीजन होगा यार, अपना अपना, मतलब करेक्ट है मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी, मैं किसी को वीक नहीं बोलूंगी, मैंने खुद सोचा था भाई कि मैं खुद कर लूंगी, नहीं बस किए मेरे। तो वो अपने अपने करेक्ट है रीजंस होते हैं सबके, बट ठीक है, मतलब अगर आपको इट सूट्स यू, देन गो फॉर इट, डू इट। इफ यू डोंट और ऐसा माइंड नहीं है कि इट्स, हाँ हाँ श्योर। हाँ 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 प्लीज कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि इट्स ऑल, मतलब अच्छा पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ऐसा भी नहीं होता यार। बहुत से, मतलब 2 साल में ना इतने सारे तो तुमको फेस्टिवल्स वगैरह, वो कॉलेज के ही फेस्ट वगैरह इतने हो जाएंगे, फिर तुम्हारे कॉलेज में कुछ ना कुछ चल ही रहा है, मतलब बहुत कुछ होता ही रहता है। तो इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ मेंटली या फिजिकली टॉर्मेंट हो रहे हो, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ, मतलब
अगर मुझे आज कोई बोलेगा ना, विल यू रिलिव योर एमबीए जर्नी, 100% यस, मैं तो तैयार हूँ। मुझे फिर से ले जाओ यार, 2 साल फिर एमबीए करा दो, चलेगा। फीस मत लेना, बहुत ज्यादा होती है, फीस मत लेना। एमबीए दोबारा करा दो, चलो। Coming to that point only, like what was your like fee structure about that, like college IFT, and if you don't mind, if you can share the हम्म placement, what was your initial package over there and हम्म। all. हाँ, श्योर श्योर। मेरा फीस था यार, मतलब IIFT इज अ Tier 1 कॉलेज, Mm-hmm. एंड इट competes with all the major IIMs over there, मतलब जितने भी ये ब्लैक ही है ना, Correct. बैंगलोर, Mm-hmm. लखनऊ, अहमदाबाद एंड ऑल। Ahmedabad, फीस, हाँ, Calcutta. तो ये सारे Tier 1 कॉलेजेस में आते हैं। इनका फीस स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है। सो आई वॉज अ जनरल कैंडिडेट, तो मैं उसका बता देती हूँ। It was around 1.5 lakh rupees for hostel and lodging, मतलब फूड, मेस एंड लॉजिंग का था पर ईयर। Per year, okay. या तो 1.5 लाख, Mm. 1.5 लाख मिला के 3 लाख ये हुआ होगा। एंड आई थिंक 2 साल का मेरा जो ट्यूशन फी था अप्रोक्सीमेटली 18 लाख होगा। ठीक है। Okay. अगेन मैं तीसरी बार रिमाइंड करा दूं कि मैं बहुत मिडिल क्लास से Middle आती हूँ class यार। families. मैं बहुत मिडिल क्लास से आती हूँ। ऐसे कोई हमने ना ऐसे जमीन खोदी और वो कलश निकल गया Yes. सोने के सिक्कों वाला, ऐसा नहीं है। लोन मिल जाता है। वंस यू गेट इनटू अ Okay. Tier 1 कॉलेज, आपको विद Mm-hmm. इन 10 मिनट्स आपको लोन मिल जाता है। ठीक है, आई गॉट अ लोन। Okay. Mm-hmm. मैंने लोन किया, नाउ राइट नाउ आई एम पेइंग इट ऑफ। तो वो चल So रहा है, तो you लोन have मिलके fully हो जाता है। पूरा नहीं, ही लोन नहीं, होता है या like some part you have to pay? दैट यू कैन डू इट। मतलब कुछ लोग, Mm. मेरे बैच के कुछ लोग थे जिन्होंने आधा लोन लिया था, आधा खुद से पे किया था। वो आप Okay. अमाउंट डिसाइड कर सकते हो। मैंने फर्स्ट ईयर का जो अपना हॉस्टल एंड मेस का जो फी रहता था 1.5 लाख, वो मैंने खुद से दिया था। बाकी मैंने 21-22 लाख जैसा खुद से लोन लिया था। तो वो Okay. कर रही हूँ, पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है अभी। Coming to the placement part. हम्म। प्लेसमेंट्स यार, प्लेसमेंट्स इज वेरी ट्रिकी टॉपिक। ठीक है। प्लेसमेंट Tier 1 कॉलेजेस का जनरली हो जाता है। Mhm. Honestly speaking, around 90% of the batch gets placed in like good organizations. 10% का थोड़ा वो बॉटम टीयर में, यू सी दैट बेल कर्व ना, तो वो जो Correct. बॉटम वाला है वो 10% को इफेक्ट करता ही है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट IFT, यू टेक रियल स्टैटिस्टिक्स ऑफ ईच एंड एवरी MBA कॉलेज। ठीक है। वो जैसे जैसे टीयर नीचे आते जाएंगे, तो आई थिंक वो उनका 10% से शायद 20% हो जाता होगा, 30% हो जाता होगा, 50% हो जाता होगा। बट व्हेन आई टॉक अबाउट Tier 1 कॉलेजेस, एवरी सिंगल कॉलेज आउट देयर इज नॉट गिविंग यू एक्चुअल 100% प्लेसमेंट्स। ठीक है, मतलब नाइस Okay. 100% This is प्लेसमेंट वो the दे रहे true हैं। reality. बिकॉज एक्चुअली स्टूडेंट को जानना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली दे डोंट नो, उनको यही लगता है, क्योंकि वो क्या रेफर करते हैं, वेबसाइट्स हम्म। रेफर करते हैं कॉलेजेस की, वहां पे सब यही दिखा आता हाँ है यार, एंड देखो वो जो स्टैटिस्टिक्स है ना वेबसाइट वगैरह पे, वो गलत नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दोज आर फॉल्सिफाइड, वो गलत नहीं है। एटलीस्ट मेरे कॉलेज के तो नहीं थे। ठीक है, वो गलत नहीं है बिल्कुल भी। आपका 100% प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन आपका कौन से बैंड में हो रहा है। व्हेन द कॉलेज इज सेइंग कि हमारा करेक्ट। एवरेज 25 जा रहा है, 25 लाख जा रहा है। आई वॉज वन ऑफ दोज फॉर्चुनेट पीपल जिनका 25 के आसपास चला गया था। ठीक है, फाइनल प्लेसमेंट जो रहता है। बहुत सारे लोगों का 17-18 भी रहता है। प्लेस तो वो भी हो रहे हैं ना, दे आर ऑल्सो गेटिंग प्लेस्ड। हर किसी को तो 80 लाख वाला पैकेज नहीं मिलेगा। मेरे कॉलेज से मिला है कुछ लोगों को, मैं नहीं हूँ उसमें। वो 17-18 वाला भी जो बच्चा होगा उसको भी नहीं मिला होगा। बट प्लेसमेंट हो रहा है, सबका हो रहा है, लेकिन आप कौन से ओके। बैंड में आ रहे हो। तो जितना भी ये जो Tier 1 कॉलेजेस होती हैं, या एनी MBA कॉलेज फॉर दैट मैटर, जब पोस्ट करती है ना अपने रिजल्ट्स वगैरह कि वेब। ये हमारा हाईलाइट था वेबसाइट पे, तो वो गलत नहीं होता है। बट थोड़ा वो समझना पड़ता है कि हर किसी को वो 1 करोड़ वाला पैकेज, हर किसी को वो 80 लाख वाला पैकेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो एवरेज है दैट इज एवरेज फॉर ए रीजन। वो जो मीन मीडियन मोड वगैरह है ना, वो दैट इज देयर फॉर ए करेक्ट है। रीजन। है ना, मीन पैकेज अगर वो लोग बोलते हैं कि आपका 24-25 लाख जा रहा है, मेरे कॉलेज का आई थिंक 24 है एवरेज। आई एम नॉट श्योर यार, मेरे को चेक करना पड़ेगा। 24-25 ही रहता है वो ओके। है। तो कुछ लोग उससे ऊपर ही रहेंगे, कुछ लोग उससे नीचे रहेंगे। कमिंग टू मी, आई गॉट इनटू एशियन पेंट्स। उस टाइम पे आई डोंट नो इफ दैट इज गोना बी कंट्रोवर्शियल और नॉट, कि वो पता चले कंपनी वाला HR मुझे कॉल कर रहा है कि हाँ मैडम बड़े पैकेज बता रही हो तुम।
होप ठीक सो है, चलो बता देते हैं इतना यार, ग्रो किसी की करे गलती एशियन हो पेंट्स जाएगी। वाले भी देखे। हाँ यार प्लीज, मेरी सैलरी बढ़ती रहे हर साल। ऑल्सो ऑल्सो ठीक है, मैं बता बता देती हूँ। मैं जिस पैकेज पे हायर हुई थी दैट वाज 29 to 30, ठीक है। ओके बट अगेन लोचा होता है सीटीसी में। 29-30 इज अ सीटीसी, उसमें ओके फिक्स्ड इफ कंपोनेंट यू आता है, लाइक उसमें एज अ वेरिएबल noob, कंपोनेंट आता है। as a noob, I'm asking you like I knew about the CTC and all, but as a हम्म like student, I'm asking you because many people don't know because they only know the 30 lakhs, so they are thinking like हाँ अभी यार 2.5 लाख महीने के अकाउंट में आएंगे and like they are thinking ऐसा about नहीं all होता, those आई things. विश। हम्म तो फिर you can like break down the thing for हम्म। students. ठीक है, तो ऐसा होता है, सपोज अगर आपका 30 लाख का पैकेज है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका इन हैंड महीने का, इन हैंड बोले तो आपके अकाउंट में जितना पैसा आ रहा है, दैट इज गोना बी अराउंड 1.5 to 1.6 lakhs, ठीक है। Okay. आपका इतना आने वाला है। अब ये इतना कैसे आता है, क्योंकि जब कंपनीज आती है ना, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज। या तो वो सीटीसी पहले लिख के आती है कि ये आपका फिक्स्ड अमाउंट है, ठीक है, या फिर वो सीटीसी लिखते हैं। अब सीटीसी अगर लिखते हैं तो उसमें देर आर टू कंपोनेंट्स जो आपको उस टाइम पे नहीं बताया जाता। जब आपका ऑफर लेटर आता है ना, उसमें वो बताया जाता है कि ये जो कंपोनेंट है ये आपका फिक्स्ड है और ये आपका वेरिएबल है। अब दैट वेरिएबल कैन बी परफॉर्मेंस लिंक्ड, दैट वेरिएबल कैन बी योर इंसेंटिव मतलब टारगेट लिंक्ड, या फिर दैट वेरिएबल कैन बी जो रेटिंग्स मिलती है ना कंपनी में एम्प्लॉयज को, Correct है कि हाँ हाँ. इसने इतना अच्छा काम किया, इसको इतना रेटिंग मिला है, वो दैट कैन बी रेटिंग बेस्ड, ठीक है। Okay. तो अब आपने वेरिएबल को साइड हटा दिया, क्योंकि वो तो वेरिएबल है, वो तो फिक्स आपका है नहीं, आपको पता नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया तो नहीं मिलेगा। नाउ दैट फिक्स पार्ट, सपोज लेट्स से 30 में से वो आपका 22-23 लाख फिक्स्ड अमाउंट हो गया। नॉर्मली इतना ही रहता है, से मतलब गुड कंपनीज का यही ब्रेकअप होता है। 30 में से कम 22-23 जैसा इनका फिक्स्ड होता है, एंड देन 6-7 जैसा ये लोग वेरिएबल रखते हैं। अब वो जो Okay. 22-23 है, तो अब आपने तो सोच लिया अरे वाह यार 22-23 तो साल के महीने के बन गए 2 लाख। अगेन हेयर एंटर्स हमारी निर्मला जी, Taxation. ठीक है। तो जब आपका 30 लाख वाला पैकेज है, तो आप सीधा 30% वाले स्लैब 30%. में घुस जाते हो, ठीक करेक्ट है। है. तो आप सीधा 30% वाले स्लैब में, एंड वहीं से आपका 30% कटता है, और वो मिला मिलू के 1.6 जैसा आपका रहता है। ये मैं आपको ऑन एन एवरेज बता रही हूँ, ऐसा रहता है। तो फॉर लेमैन टर्म्स दिस इज द ब्रेकअप ऑफ अ सीटीसी, ठीक है। एंड व्हेन ओके. आई से सीटीसी, सीटीसी मींस कॉस्ट टू कंपनी, कि आप कितना कॉस्ट इनकर करोगे कंपनी को इफ यू वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो ईयरली लाइक प्रमोशंस ग्रोथ व्हाट इज द सिनेरियो, मतलब आप एक कॉर्पोरेट कल्चर को समझा सकते हो ब्रीफ में, लाइक हाउ इज बिकॉज यू आर एक्सपीरियंसिंग द थिंग. हाँ यार, कॉर्पोरेट मतलब अलग अलग चीजें हैं। ऑपरेशंस अलग होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग अलग है, फाइनेंस अलग हो जाता है, ट्रेड अलग हो जाता है इन माय केस। तो Because my point of सेल view is like mostly people think about like when they see memes and all like all corporate majdoors are there like they are like always मजदूरी है भाई, tired there. मजबूर भी है, मजदूर भी है, मजबूर भी है, ठीक है। They are always like their like life is gonna hell like वो अपने लाइफ से ही परेशान है, सिर्फ वीकेंड का इंतजार करते हैं. So I just want to like know from you as a like real stuff कि what actually it is all about. हम्म कुछ कंपनीज होती हैं जो टाइम को वैल्यू देती है, ठीक है। आई नो सम ऑफ माय कलीग्स जिनका अगर उन्होंने 9 बजे शुरू किया है, तो 5 बजे वो लोग लैपटॉप भी अपना ऑफिस में ही छोड़ के आते हैं। दैट मीन्स कि उनका काम ऑफिस में ही खत्म हो गया। कुछ Okay. कंपनीज होती हैं, आप लैपटॉप भी साथ ही लेके जाओ अपना, छोड़ना है तो छोड़ो, लेकिन आप फोन में ना अपना मेल्स वगैरह चालू करके रखना, हम आपको दिन भर पेस्टर करेंगे, ठीक है। नॉर्मली एफएमसीजी कंपनीज में ऐसा होता है। एफएमसीजी इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसका मैं एग्जांपल अगर दूं, आपका सर्फ हो गया, आपकी साबुन हो गई, आपके बिस्किट्स हो गए, ये इन चीजों को जो कंपनीज बनाती हैं उनको एफएमसीजी बोलते हैं, ठीक है। Like HUL and all. एचयूएल, मारिको, आईटीसी, एशियन पेंट्स हाँ. वगैरह ये सब, ठीक है, ये इसमें आ जाती है। अब कॉर्पोरेट में व्हेन आई से, पहले आपको लाया जाएगा, अगर आपको एक्सपीरियंस है पहले से कॉर्पोरेट का, एमबीए से पहले, तो वेल एंड गुड, तब भी आपकी थोड़ी सी ट्रेनिंग होती है, आपको
ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर वगैरह समझाया जाता है। समझाता कोई नहीं है, आपको खुद से ही समझना पड़ता है, क्योंकि वो जो हैंड होल्डिंग होती है ना, वो एमबीए तक ही रहती है। उसके बाद यू आर ऑन योर ओन। अगर कोई अच्छा मैनेजर, अच्छा कोई साथ में मिल गया, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता है तो यू आर Actually, Niharika, your what? ऑपरेट का। आई वाज सेइंग, फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ा ट्रेन किया जाता है, ठीक है, ट्रेनिंग Okay, होती है आपको, डिफरेंट जो वर्टिकल्स होते हैं आपके कंपनी के वो आपको बताए जाते हैं। आई थिंक दिस इज कॉमन फॉर ऑल द कंपनीज। okay, एक टाइम के बाद आपको कोई रोल दिया जाता है, एंड दैट कैन बी 1 year, दैट कैन बी 6 months, दैट कैन बी 3 months, डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, योर प्रायर एक्सपीरियंस टू एमबीए एंड योर कंपनी स्टैटिस्टिक्स। अगर कंपनी आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग कराती है तो 3 महीने के बाद आपको कोई रोल दे देंगे, इन मोस्ट केसेस। 6 महीने की ट्रेनिंग कराती है, 6 महीने के बाद रोल दे देंगे। 1 साल की ट्रेनिंग होती है, 1 साल के बाद रोल दे देंगे। अब आपने वो सारी चीजें सीख ली कि इस ट्रेनिंग के टाइम पे क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको रोल मिल गया। अब उस रोल में आपकी जिम्मेदारी है कि वो टारगेट्स कैसे पूरे हो रहे हैं, आपके अंडर में जो लोग हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, उनको आपको मैनेज करना है। आपके ऊपर जो मैनेजर है उनको भी आप बता रहे हैं कि ठीक है सर मेरे रीजन में, या ठीक है मैम मेरे रीजन में ये हो रहा है। अब ऊपर से टारगेट्स आते हैं ना कि भाई इतना करना है, इतना करना है, दैट यू हैव correct टू है। मैनेज, कि आप कैसे अपने अंडर जो है उससे करवा रहे हो और आप ऊपर वाले को कैसे मैनेज कर रहे हो। दैट इज द होल क्रक्स कि व्हाट अ मैनेजर इज। Okay, you have to manage the whole, or like your employees and all. आपको बेसिकली करेक्ट। मैनेजमेंट ही सिखाया गया है पूरे 2 साल, तो लाइक यू हैव टू हम्म। लाइक प्रैक्टिकली आपको उसको अप्लाई करना है उस चीज को somehow. एग्जैक्टली exactly. बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है। अब जैसे आई एम एन एशियन पेंट्स, हम्म, पेंट्स ही बिकता है, नाम में ही लिखा है, हम्म, राइट। अब मेरे करेक्ट है। मार्केट में बारिश हो गई, हम्म, ठीक है, बहुत छोटी सी, दिस इज अ रियल प्रॉब्लम बाय द वे। बारिश हो गई, हम्म, गोडाउन में पानी भर गया, डीलर ने माल लेने हम्म, से मना कर दिया। माल लेने से यार बहुत कॉर्पोरेट लिंगो आ गया है, ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनीज में करेक्ट ऐसे है, वी ही बात, अंडरस्टूड। ऐसे ही बातें होती है, ठीक है, माल ले हाँ लिया, करेक्ट है, देन करेक्ट है, हाँ हाँ। तो अगर किसी को बहुत अगर अजीब लग रहा है, सोफिस्टिकेटेड रहे तो फिर हाँ अपन कंसाइनमेंट बोल सकते हैं, बाकी एग्जैक्टली बोलते हैं अगर सब। किसी को, हाँ किसी को अगर ऐसा लग रहा हो कि ओ माय गॉड कॉर्पोरेट वेरी हाँ कि ऐसा फैंसी, कुछ है, सो हाँ वैसा कुछ नाइस, नहीं है। हर कहीं पे ऐसा नहीं होता है। अनलेस यू आर इन हम्म, कंसल्टिंग और समथिंग, देन यू कैन हम्म, वियर योर फैंसी स्कर्ट्स एंड ऑल दोस ब्लेजर्स एंड ऑल। अगर सेल्स एंड मार्केटिंग में हो भाई, ट्राउजर्स वगैरह डालो, टी शर्ट वी शर्ट डालो, यूं समझ लो मार्केट वार्केट घूमना है।